بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جس کو سن کر آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب ایسا کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی پر ایسا عذاب بھیجا اور اس مولوی کو دیکھ کر لوگ توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک بستی میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی 8 سال کی بیٹی تھی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہی تھی۔ وہ بیوہ عورت بہت نیک تھی۔ اس بیوہ عورت نے خود تو قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو قرآن پاک کی تعلیم دلائے۔ اس نے اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے مسجد کے مولوی کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی، مولوی صاحب، میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ باقی بچے پڑھنے آتے تھے۔ وہ بیوہ عورت بھی اپنی یتیم بچی کو مولوی کے پاس چھوڑ کر خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی گھر واپس آ چکی تھی، وہ خود بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے زیادہ بات چیت بھی نہ کی اور اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ بھی سو جائے اور مجھے بھی سونے دے کیونکہ میں بہت تھک چکی ہوں۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن صبح ہوئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جلدی اٹھے اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے چلی جاؤ تاکہ تم لیٹ نہ ہو اور مولوی صاحب تمہیں مارے نہ۔ صبح صبح بچی ضد کرنے لگی کہ اماں مجھے نہیں پڑھنا، میں مسجد میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ سن کر اس کی ماں کو غصہ آ گیا کہ کیوں نہیں پڑھنا؟ تیری خاطر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، مگر پھر بھی تجھے اسکول کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ اگر مفت میں مولوی صاحب تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ وہ بچی کہنے لگی، ماں میں تیرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجھ لیا کروں گی، مگر مجھے مسجد میں مولوی کے پاس پڑھنے نہیں جانا۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں اسے تھپڑ مارا اور کہنے لگی، تجھے نیک بنانا چاہتی ہوں، تجھے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اور تو زمین کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اسے لے کر مولوی صاحب کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ خبردار، آج کے بعد ایسی بات منہ سے نکالی۔ وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر تیز تیز قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف چلی جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میری خواہش ہے کہ تم حافظ قرآن بنو اور تو ہے کہ تجھے اپنی ماں کی خواہش کا ذرا بھی احساس نہیں۔ اس کی بیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مسجد کے قریب جیسے ہی پہنچی، بیٹی نے ماں کا ہاتھ چھڑوانا چاہا کہ ماں مجھے نہیں پڑھنا، مولوی انسان نہیں ہے، مگر اس کی ماں اپنی بیٹی کی بات کو ذرا بھی غور سے نہیں سن رہی تھی اور نہ ہی اس کی بات کی طرف توجہ کر رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ بچی نہ پڑھنے کی وجہ سے بہانے کر رہی ہے۔ اس کو کھینچتے ہوئے مسجد کے اندر لے گئی۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں گاؤں کا مولوی بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ مولوی صاحب اس یتیم بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر بری طرح گھورنے لگے۔ وہ بچی مولوی کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی، سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ معنی خیز نظروں سے مولوی اسے دیکھ رہا تھا اور پھر وہ عورت مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ مولوی صاحب، آپ میری بیٹی کو سمجھائیے کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں تو روز اس کی ضد سے تنگ آ چکی ہوں۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی۔ میں بچے کو قرآن پڑھانے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں اس کو رکھوں گا اور اس کو سمجھاؤں کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سن کر بچی خوف زدہ ہو گئی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مولوی کے ہاتھ میں دیا اور خود مسجد سے باہر نکل گئی۔ وہ عورت لوگوں کے گھروں میں جھوٹے برتن مانجا کرتی تھی۔ اس کے بعد یتیم بچی گمسم رہنے لگی، ذرا ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی، اکثر نیند میں بڑبڑایا کرتی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہیں اس لیے ایسا کرتی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ قصہ تو کچھ اور ہی تھا۔ جب بھی وہاں اپنی بچی کو اپنے گھر دیکھتی، ہمیشہ ڈری سہمی رہتی اور خاموش رہتی۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا رہتا، مگر اس کی ماں نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ آخر میری بیٹی اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہے، یہ خوشی سے قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتی۔ شاید کہ اس کی بیٹی آخر مسجد نہ جانے کی وجہ مولوی صاحب کی حرکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیٹی مسجد سے واپس نہ آئی۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید مولوی صاحب اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس لیے اب وہ بچی ہمیشہ مسجد سے دیر سے آتی اور جب آتی تو خود کمرے میں چلی جاتی اور رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی ماں اس لیے یہ نہ پوچھتی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہوں گے اور اس لیے یہ رو رہی ہے، الٹا اس کی ماں پریشان ہو جاتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ
मेरी बेटी के दिल में कुरान पढ़ने का शौक पैदा कर दे। लेकिन आज तो 2 घंटे हो चुके थे, अभी तक नहीं आई थी। उसने सोचा मैं खुद जाकर देखती हूँ, आखिर मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई। जैसे बेटी सामने गई थी, अभी तक नहीं आई, कि वो क्यों नहीं पहुंची। ये सोच जैसे ही वो मस्जिद पहुंची और फिर ये सुना कि मेरी बेटी वहां से आ चुकी है लेकिन घर नहीं पहुंची, ये सुनकर उसकी माँ का दिल कांप गया। आखिर मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। तो वो उस शख्स को कहने लगी कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मौलवी साहब हमेशा मेरी बेटी को देर तक समझाते रहते हैं ताकि इसके दिल में कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो। वो शख्स कहने लगा, मस्जिद के अंदर जाकर देखो, मौलवी साहब से पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। उस शख्स के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रहा था। तो फिर कहने लगा, देखो मस्जिद में कोई नहीं है, तुम ऐसा करो कि मौलवी साहब के घर चली जाओ, वहां जाकर उनसे पूछ लो अपनी बेटी के बारे में। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। मौलवी साहब के घर गई, उसकी बीवी ने दरवाजा खोला और कहा, मौलवी साहब तो अभी तक घर नहीं आए, वो हमेशा ही लेट आते हैं। मस्जिद से आने के बाद वो गाँव के सरदार के बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। ये सुनकर तो उस औरत का दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। जैसे ही घर पहुंची, सामने जो मंजर था वो नाकाबिले हालत देखकर उसकी मां को बहुत झिझका लगा। उसने आगे बढ़ी और वहां पर अपनी बेटी को देखा तो भागकर अपने सीने से लगाया। जब देखा तो उसकी बेटी तो आखिरी सांसें ले रही थी, बाल सारे बिखरे हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे। इसे देखकर इसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और फिर अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें किसने मारा है। तो उसने कहा कि मौलवी साहब ने। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ को बेटी मस्जिद में न जाने की वजह समझ में अब आई थी। वो गोद में अपनी बेटी को डालकर रोने लगी कि बेटा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। उस वक्त उसकी बेटी उसके बाहों में दम तोड़ चुकी थी। ये देखकर वो माँ पागलों की तरह रोने लगी और आवाज इतनी बुलंद थी कि पास के पड़ोसी मर्द औरतें सब घर में जमा हो गए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि हंसती खेलती बच्ची मौत के मुंह में चली जाएगी। हर कोई कभी बच्ची को देखता, कभी उसकी माँ को देखता, और उसकी माँ तो अपने होश खो बैठी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। मासूम बच्ची कफन में लिपट चुकी थी। पूरा गांव उस बेवा औरत के घर में जमा था और लोग एक दूसरों से बातें कर रहे थे कि बेचारी मासूम बच्ची मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए गई थी, रास्ते में किसी ने इसके साथ गलत हरकत की और ये वहीं दम तोड़ गई। जब बेवा औरत रोती हुई कुछ संभली, उसने लोगों की बातें सुनी। वो कहने लगी कि कोई और नहीं, मैं जानती हूँ मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को जरूर इंसाफ दिलाऊंगी। मैं इंसान उसको नहीं छोड़ूंगी जो भेड़िया है। और वो भेड़िया उन तमाम लोगों में मौजूद लोग थे, वो उन्हें देख रहा था। यानी कि मौलवी साहब और बाकी सब हैरत में थे कि वो कौन है जिसने ये हरकत की है, ताकि अपनी औलाद को भी उस भेड़िए जैसे इंसान से बचा सके। तभी मस्जिद के मौलवी साहब उसके घर में दाखिल हुए थे। मौलवी साहब को देखते ही उस औरत की आंखों में खून उतर आया और वो भागकर उसका गिरबान पकड़ने लगी। जैसे ही लोगों ने इसको मौलवी साहब का गिरबान पकड़ते हुए देखा तो लोग उसको पीछे करने लगे, कहने लगे, ये तो मौलवी साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। रो रो कर चीख चीख कर सबको बोल रही थी, बेटी को इसने मार दिया, इसको ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसा भेड़िया है जो मेरी बेटी को नोच नोच कर मार डालेगा, तो मैं अपनी बेटी को कभी भी इसके पास कुरान पढ़ने के लिए ना भेजती। वहां मौजूद तमाम लोग मौलवी साहब को देखते, कभी उस बेवा औरत की बातें सुनते। मौलवी साहब बहुत नेक इंसान माने जाते थे। कभी कोई ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा करेंगे। पूरा गाँव, हर कोई उस मौलवी की बहुत इज्जत करता था। तमाम लोग परेशान हो गए कि कितनी जल्दी ये सब कुछ हो रहा है। अब तो वो मौलवी परेशान हो गया कि इतनी जल्दी मेरा राज खुल जाएगा। वो इसी तरह बेवा औरत को बोलते हुए देखकर लोग उसे बेवा औरत से बड़े गुस्से से कहने लगे, मौलवी साहब के पास जाती थी, अभी भी मेरी बेटी भी उनके पास पढ़ती है। आज तक ऐसा हम लोगों ने तो कभी नहीं सुना। कोई भी इसका साथ देने के लिए तैयार ना था। वो औरत अगले ही रोज उठी और रोते हुए वहां के सरदार के घर चली गई। और इसके बाद आखिरकार सरदार ने इसको अपने पास बुलाया और उसने उसको बताया। तो वो सुनकर कहने लगा, मेरे बस की बात नहीं है, तुम लोग गांव के काजी के पास जाओ। वो ये सुनकर परेशान हो गई कि इस सब को तो मैं जानती नहीं। वो सरदार के सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी।
कि वो मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए। सब मामलात का मुझे नहीं पता। सरदार ने काजी का पता दिया तो वो इसके पास चली गई, जाकर पूरी बात बताई। जब काजी को पूरी बात बताई तो काजी कहने लगा, फैसले की तहकीकात जानने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो वो औरत कहने लगी, पैसों की आप फिक्र न करें, मैं आपको जितने चाहे उतने पैसे ला कर दूंगी। मैं कुछ भी करूं, आप मेरी बेटी को जरूर इंसाफ दिला दीजिए। जालिम मौलवी ने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और काजी ने उस मौलवी को अदालत में बुलाया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बेवा औरत इसे यहाँ तक ला सकती है। इसे बहुत बड़ा झटका लगा था कि एक फकीर और बर्तन मांजने वाली औरत भी इसको इस अदालत में पहुंचा सकती है। पूरा गांव उस बेवा औरत पर थू थू कर रहा था कि वो एक मौलवी को अदालत तक लेकर चली गई। लोग कहने लगे, बेटी तो मर चुकी, उसके लिए आप सवाब के लिए कुछ नहीं कर रही और इतने नेक मौलवी के ऊपर इतना बड़ा केस कर दिया। सब लोग हैरान थे, केस करने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आए। लोग कहने लगे, ये पैसे इसके पास कहाँ से आए, जरूर ये चोरी करती होगी। जिन घरों में ये काम करती है वो बेवा औरत खामोश रही, उनको नजरअंदाज करती रही। वो तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी अपनी बेटी के लिए। वो अदालत में गई और मौलवी साहब ना आते। हर अगली तारीख डाल दी जाती। यूं 6 महीने गुजर गए। हर महीने इसको मुंह मांगी रकम उस को मिल जाती काजी को, हत्ता कि इसकी हर चीज बिक चुकी थी। अब इसके पास कोई चीज नहीं बची थी। सारी रात वो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती, नमाज में बैठकर रोती और अपने रब से बातें करती, कहती, या अल्लाह, मेरा जो जहन था वो तो सिर्फ कुरान की तालीम दिलाने का था, तो अब मैं उस मौलवी का भयानक चेहरा पहचान लेती। काश मेरा जहन तूने इतना रोशन किया होता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। इस तरह मैं उसे खोती ना। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। अब ये दुनिया वाले न जाने मुझे कभी इंसाफ दिलाएंगे या नहीं। अब बेवा औरत काजी के पास गई। काजी कहने लगा, वक्त आ चुका है, उस मौलवी को सजा दिलवाऊंगा, मगर तुम्हें इसके लिए मुझे डबल रकम देना होगी। थोड़ी देर के लिए तो वो बेवा औरत सोच में पड़ गई, क्योंकि अब इसके पास सिवाय घर के कुछ नहीं था। कहने लगा कि अब हर हाल में वो फांसी पर चढ़ जाएगा। काजी की इस बात ने उसे बहुत ज्यादा यकीन दिलाया और कहा, उसके लिए मुझे डबल रकम की जरूरत पड़ेगी और देखना फैसला कैसे चुटकियों में होता है। तुम देख लेना, इस तरह लोग इस मौलवी को घसीट कर अदालत में ले आएंगे और तुम्हारे कदमों में इस मौलवी का सर रख देंगे। ये सुनकर उस बेवा औरत को बहुत ज्यादा तस्कीन मिल रही थी। ये सुनकर वो कहने लगी, ठीक है, मैं सुबह आपको रकम ला कर दूंगी। वो जानता था कि ये सादा सी औरत है और मेरी बातों में आ जाएगी। औरत सरदार के घर गई और वहां मौलवी साहब सरदार के बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। उसको देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखने लगे। उस बेवा औरत का बस नहीं चल रहा था कि वो मौलवी साहब का गला दबा देती, वो वहीं इसको जान से मार देती, मगर आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखने लगी। उसने अपना घर उस सरदार को बेच दिया और पैसे लेकर सीधा काजी के पास चली गई। काजी ने पैसे लेकर इसको कहा कि इंतजार करो, कल के दिन का तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ये सुनकर वो बेवा औरत सुकून से अपने घर वापस चली गई और सोचने लगी, कल वो दरिंदा शख्स फांसी के तख्त पर लटक जाएगा। मगर यूं ही खामोशी से वो दिन गुजर गया। 2-3 दिन और गुजर गए तो मजबूरन काजी के घर गए। वहां जाकर रास्ते में चौकीदार ने रोक लिया। कहने लगा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बच्चों के साथ दूसरे इलाके घूमने के लिए गए हुए हैं और 2 महीने तक इनके आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। औरत के कानों से धुआं निकलने लगा और कहने लगी, मेरी बच्ची का केस चल रहा था और परसों इस केस की सुनवाई थी, इसे कैद पढ़नी थी। वहां से वो दौड़ती हुई सीधा सरदार के पास गई, इसको ये बात बताई। अजीब नजरों से उस सरदार ने उस बेवा औरत की तरफ देखा। कहने लगा, तुमने तो केस को बंद करवा दिया है, तब भी अब मेरे पास कागजात मौजूद है। तुमने तो गलती से मौलवी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था और इसके बाद तुमने केस वापस ले लिया, इसलिए अब तुम्हारा केस बंद हो चुका है। ये सुनकर उस बेवा औरत के पैरों तले जमीन निकल गई। अचानक उसे वो धक्का देकर वहां से निकली, गिरती पड़ती रोती गिड़गिड़ाती के ये कानून गरीबों के लिए नहीं है, ये तो सारे असूल गरीबों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। सबको बुरा भला कह रही थी, फिर वहां से उठ खड़ी और कहने लगी, तुम इंसाफ नहीं कर सकते, मगर मैं अपनी बच्ची को खुद ही इंसाफ दिलाऊंगी। ये कहकर सीधा अपने घर गई, चाकू उठाया और मौलवी साहब के घर चली गई। मौलवी साहब के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो बहुत ज्यादा गुस्से से मौलवी के घर गई। वो वहां मौजूद नहीं थी। उसकी बेगम, मौलवी साहब तो इसको देखकर हड़बड़ा गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसके हाथ में चाकू भी था। जैसे ही उसने मौलवी के ऊपर हमला किया, मौलवी ने इसका हाथ पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मार दिया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो यूं ही मौलवी के साथ लड़ती रही और उसको यही कहती रही कि तूने ही मेरी बेटी को मारा है, तू इंसान नहीं, एक दरिंदा है। लोगों के सामने तू फरिश्ता बिना फिरता है, मगर अल्लाह पाक ने तुझे औलाद जैसी नेमत से भी नहीं नवाजा। तू बे औलाद है, बे औलाद ही रहेगा। इतना बेवा औरत ने
मौलवी साहब के बाजू पर चाकू मारा और उसके बाजू से खून निकलना शुरू हो गया। ये देखकर मौलवी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरी ताकत और कुव्वत से बेवत औरत को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और वहीं चाकू पकड़ उसके सर पर ज़रबे लगानी शुरू कर दी। वो सारी खून से भर चुकी थी और उसके सर से भी खून बह रहा था। वो कमज़ोर और बेवा औरत अपने आप को बचाने के लिए मौलवी को नोच रही थी, मगर वहीं उस मौलवी दरिंदे ने उस बेवा औरत के साथ भी वही कुछ किया जो उसकी बेटी के साथ किया था। उस मौलवी ने किसी फजूल चीज की तरह उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। जब होश में आई तो उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका था। दुनिया की कोई शय का उसे होश नहीं था। पहले बेटी की मौत का गम, गुर्बत की सताई हुई बेवा औरत और काजी के अदालतों के चक्कर लगाकर जलील हो चुकी थी। उसकी हर चीज बिक चुकी थी, मगर अब वो पागल हो चुकी थी। लोगों के दरवाजे बजाकर उनको कहती, देखना तुम लोगों के मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, मेरी मदद नहीं की, मेरी बच्ची मर गई, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, अब मेरा अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा, तुम लोगों ने तो मेरा साथ नहीं दिया। पहले तो लोग इसकी बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस होते, दुख महसूस करते, लोग उसको खाने भी दिया करते थे, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता इसकी बददुआ बढ़ती गई तो लोगों को इस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। अचानक ही ज़लज़ला आया जिससे लोग कांप कर रह गए। उस ज़लज़ले में ज़मीन पर बहुत गहरी दरारें पड़ रही थी। लोग अल्लाह अल्लाह करते हुए घरों से बाहर निकले, मगर तभी उन्होंने मौलवी के घर से चीखो पुकार की आवाज़ सुनी। उनकी बीवी चीख रही थी, चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी। उसकी आवाज़ जो थी तो तमाम लोग दौड़े हुए उसके घर पहुंचे। जब लोगों ने देखा तो उनकी रूह लरज गई। लोग कांप उठे, तौबा तौबा करने लगे। मौलवी साहब के घर में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी थी जिसमें मौलवी साहब धंसे हुए थे और उनका पूरा जिस्म ज़लज़ले से फटने वाली ज़मीन में ढक चुका था और सिर्फ उनका चेहरा नजर आ रहा था और वो चेहरा एक कुत्ते नुमा शक्ल का बन चुका था। ये देखकर लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। फिर हिम्मत की कि मौलवी साहब को निकालें। जैसे ही उनको निकालने के लिए आगे बढ़े, ज़मीन एक मरतबा फिर हिली और वो दरार तंग हो गई। खून इस दरार से बाहर निकलता हुआ आ रहा था और देखते ही देखते मौलवी साहब इस दरार में गायब हो गए। उस मंजर को देखकर लोग डर गए और सहम चुके थे। ये वाक़या मुख्तलिफ किताबों में लिखा गया। ये मंजर देखकर लोग समझ चुके थे कि ये उस बेवा औरत की बद्दुआ थी और मौलवी साहब पर अल्लाह का अजाब था। बच्ची के साथ जिना किया था जिसकी वजह से अल्लाह का उन पर अजाब आया। मौलवी साहब लोगों के सामने एक फरिश्ता बने फिरते थे, मगर वहाँ अल्लाह के अजाब से ना बच सके। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। वो कहाँ जाते हैं, उनको पढ़ाने वाली कारी साहब हैं और हर कारी की बात नहीं कर रहा। इससे कोई ही सब ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ मौलवी ऐसे होते हैं जिनकी हरकतों को बच्चे महसूस करते हैं। हमारे बच्चों को अल्लाह से बुरे लोगों से महफूज रखे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर कोई ना कोई सबक देगी और हम सबको बुरी आदतों से भी बचाए रखेगी। आमीन।